Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 4 climate, and in this part of the chapter we had learned about the annual average temperature and rainfall graphs. Then we had solved some questions which were upon this. Then we had learned about the geographical explanation of Brazil. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next part is this. Can you tell? Study the graph given in figure 4.5 and answer the following questions. Now some graphs are given here. The graph of Delhi, then Mumbai, Kolkata and Chennai. Such a type of graphs are here and we should have to study here. Then the first graph we are seeing here, which is about Delhi, the city of India, and the average annual temperature and rainfall or the precipitation graph we are seeing here. Now this side we are seeing the temperature, which is degree in Celsius, and at the right side we are seeing the rainfall in millimeter, and the downside we are seeing the months and some bar graphs we are seeing here. Such a type of graphs are there which is about the Mumbai, then Kolkata and Chennai. Now some questions are upon it and we are going to try to solve these questions. Okay, the first question is there. What differences do you find in the rainy season of Chennai and other cities of India? Why? Then we can say the answer of this question, that is most of the region of India receive rain from the southwest monsoon wind. Then we are seeing we can say that most of the regions of India receive the rainfall for nearly 4 months. That means from June to September. Then the southern part of India receive rain from southeast as well as northeast monsoon. Chennai is located in the southern part of India. Chennai receive rain from nearly 7 to 8 months. It rains in Chennai from May to December. Then such a type of answer we can say of this question. The next question is there, that is, what similarities do you see in the temperature curves of Delhi and Kolkata? तो दिल्ली और कलकत्ता के जो टेम्परेचर है उनके कर्व्स में हमें क्या सिमिलरिटी वहाँ पे दिखाई दे रही है. देन वी कैन से दैट फॉर बोथ द सिटीज़ the height of the temperature curves increase gradually from the month of January to month of May. Then we can say that for both the cities the height of the temperature curves increase gradually from the month of August to the month of November. Okay, now the next question is there, that is calculate the average rain of minimum and maximum temperature of Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai. Then we can say that the answer is like this. The average range of minimum and maximum temperature of Delhi is between 6 degrees Celsius and 41 degrees Celsius. Then the next is the average range of minimum and maximum temperature of Kolkata is between 9 degrees Celsius and 37 degrees Celsius. Then the next, which is about Mumbai, the average minimum and maximum temperature of Mumbai is between 16 degrees Celsius and 34 degrees Celsius. The next one is Chennai. Average range of minimum and maximum temperature of Chennai is between 21 degrees Celsius and 39 degrees Celsius. Okay. The next question is, in which city is the range minimum? What can you infer from this? Then we can say that the range is minimum in Chennai. It indicates that Chennai has equable climate.
Then the next question is there, that is, in which city is the range maximum? What can you infer about this? Then we can say that the range of maximum in Delhi, it indicate that Delhi has extreme climate. The next question is that, based on the temperature and rainfall of Mumbai, comment upon its climate. तो क्लाइमेट के ऊपर वहाँ पे हमें कमेंट करनी है मुंबई के टेम्परेचर और रेनफॉल के बेस के ऊपर. देन वी कैन से दैट द एवरेज रेंज ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ मुंबई इज़ बिटवीन 60 डिग्री सेल्सियस एंड 34 डिग्री सेल्सियस. ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेंज इट कैन बी concluded that the climate of Mumbai is hot and humid. In Mumbai, the amount of average rainfall in month of June is nearly 450 millimeter, and it is nearly 720 millimeter in the month of July. On the basis of the amount of rainfall, it can be conducted that it rains heavily in the month of July and in Mumbai. Okay, the next question, that is, in which month does India experience the highest rainfall? Then in India experiences the highest rainfall in the month of June. Next question is there, that is, classify the cities as with equable and extreme climates. Then we can say the answer like this: the city with equable climates are Mumbai and Chennai, and the city with extreme climates, which are Delhi and Kolkata. Now the next thing is there, that is geographical explanation. Then now listen carefully. India's climate is monsoon type. The sun rays are perpendicular up to the Tropic of Cancer. तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का है, और जो सन रेज इंडिया के ऊपर गिरते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे सीधे गिरते हैं, विच पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री. और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी कंट्री के, मतलब इंडिया की कंट्री के बिल्कुल मिडल से वहाँ पे गया है. एज अ रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर्स आर हायर थ्रू आउट द ईयर. तो जिसकी वजह से मतलब पूरे साल भर में जो टेम्परेचर होता है वो एवरेजली हाई होता है. ऑल्सो टेम्परेचर्स इंक्रीज टूवर्ड द साउथ, और साउथ की तरफ भी टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ता जाता है. इन विंटर द टेम्परेचर्स ड्रॉप to -40 degree Celsius in Jammu and Kashmir and part of mountainous region of Himalayas. तो विंटर के सीज़न में इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट होता है जम्मू और कश्मीर इन पार्ट्स में, और साथ साथ में जो माउंटेनियस रीजन है हिमालय का, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है. द डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया आर ड्यू टू latitudinal location and altitude of the place. तो इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट की डाइवर्सिटी है वो लैटिट्यूडनल लोकेशन और एल्टीट्यूड जो है उस प्लेस का, उसके ऊपर निर्भर करता है. द इंडियन ओशन एंड द हिमालयन रेंज exert the great influence on the climate of India and the origin of monsoon. तो इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर और जो मानसून की ओरिजिन है उसके ऊपर मतलब इन्फ्लुएंस करने वाले जो भी कुछ कंटेंट वहाँ पे बताए जाते हैं या जो भी चीज़ें, वो है इंडियन ओशन और हिमालयन रेंज, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे चेंज होती है, या मानसून जो ओरिजिन है उसमें उसके ऊपर कुछ प्रभाव वहाँ पे गिरता है या इन्फ्लुएंस वहाँ पे होता है. एवरी कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयंस. तो नॉर्थ की तरफ से बहने वाली हर एक ठंडी हवा जो है वो हिमालय माउंटेन के वजह से, उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे रुक जाती है. सिमिलरली द साउथ वेस्ट मानसून रिपीट फ्रॉम द शिवालिक एंड हिमाचल रेंजेस ऑफ द हिमालयस.
तो उसी तरह से साउथ वेस्ट मानसून जो रिट्रीट मतलब वहाँ से फिर से आने वाली जो हवाएं हैं या जो भी एयर है वो शिवालिक और हिमाचल रेंजेस जो है वो हिमालय के जिसकी वजह से रुकते हैं। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स इन समर, लो प्रेशर एरियाज डेवलप इन पंजाब प्लेन्स एंड द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो मतलब जो भी हाई टेम्परेचर समर के अंदर वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से एक लो प्रेशर बेल्ट एरिया जो है वो डेवलप होता है पंजाब की प्लेन्स की तरफ और जो थार डेजर्ट है राजस्थान का वहाँ पे। दिस अट्रैक्ट विंड्स कमिंग फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन इन इंडियन ओशियन विच स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड्स द मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो जिसकी वजह से मतलब इस हाई प्रेशर की वजह से जो इंडियन ओशन है वहाँ से जो भी मतलब हवाएं हैं वो इंडिया की मेन लैंड की तरफ वहाँ पे बहना स्टार्ट करती हैं। दिस मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्रिंग रेन्स, और ये मॉइस्चर से भरी हुई जो भी विंड्स है जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इट रेन्स मोर इन द कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा रेन होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हैं उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये उन विंड्स के लिए ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे बनता है और जिनकी वजह से जो भी रेन लेकर आने वाली विंड है वो वहाँ पे रुक जाती है और जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया है इंडिया का वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होती है। द रेनफॉल रिड्यूस इन द लीवर्ड साइड ऑफ द हिल्स। तो रेनफॉल लीवर्ड साइड में, हिल्स की लीवर्ड साइड जो है वहाँ पे कम होती है। लीवर्ड साइड मतलब जहाँ पे कोई ऐसी हिल साइड या बिल्डिंग वाली साइड जहाँ से हवाएं रोकी जाती हैं वहाँ पे कम रेनफॉल होती है। दिस विंड्स ब्लो पैरेलल टू द आरवलीज, और यही विंड्स जो है वो आरवलीज के साथ साथ में वहाँ पे ब्लो करती हैं। अरावली जो रेंजेस है माउंटेनियस रेंजेस है वहाँ पे। एज अ रिज़ल्ट रेनफॉल इज़ लो इन द पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, और जिसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में कम बारिश होती है। लेटर दिस विंड मूव टूवर्ड्स द हिमालयाज़, और उसके बाद ये जो विंड्स हैं वो हिमालय की तरफ बहना शुरू हो जाती हैं। देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़, और उनकी जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है वो वहाँ पे बढ़ जाती है। ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिमालयाज़। तो हिमालय के नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल वहाँ पे होती है, मतलब हवाएं ऊपर की तरफ जाती है और जिसकी वजह से रेनफॉल होती है। दिस विंड्स रिटर्न फ्रॉम हिमालयन रेंजेस एंड देयर रिट्रीटिंग जर्नी स्टार्ट, और ये जो विंड्स है वो हिमालयन रेंजेस से फिर से रिटर्न होती है और उनकी रिट्रीटिंग जर्नी वहाँ पे शुरू हो जाती है। While blowing from the northeast towards the Indian Ocean, these winds bring rainfall again to some parts of the peninsula। तो जिस तरह से ये विंड फिर से हिमालय की तरफ से वापस वहाँ पे गुज़रती है तो जो इंडिया का पेनिनसुला पार्ट है वहाँ पे ये फिर से कुछ बारिश वहाँ पे लेकर आती है। दिस इज़ रिट्रीटिंग मानसून सीज़न इन इंडिया, और ये इंडिया का रिट्रीटिंग मानसून सीज़न वहाँ पे होता है। इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर। तो जनरली इंडिया के अंदर क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट होता है पूरे साल भर में। एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of India, India is considered to be a tropical region। तो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है जिसकी वजह से इंडिया को ट्रॉपिकल रीजन वहाँ पे माना जाता है। इंडिया फेसेस नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक एरेटिक रेनफॉल। तो इंडिया जो है वो बहुत से सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स को फेस करता है, मतलब जो नैसर्गिक आपत्ति जिसे हम कहते हैं उसे फेस करता है, जिसमें एरेटिक रेनफॉल मतलब जिसे हम कहते हैं कि अनसर्टन रेनफॉल जिसे हम कह सकते हैं या अनिश्चित बारिश जिसे हम कह सकते हैं वो वहाँ पे होता है। मतलब विदाउट एनी रीज़न देयर आर चेंजेस इन द
सीज़न, तो सीज़न में कुछ रीज़न ना होते हुए चेंजेस वहाँ पे दिखाई देते हैं। देन ड्रॉट्स, सूखा, साइक्लोन्स जिसे हम बवंडर कहते हैं, उसके बाद फ्लड मतलब एक्सेट्रा फ्रीक्वेंटली, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे बार बार होती हैं। देर आर 4 सीजन्स एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से इंडिया के अंदर 4 सीज़न वहाँ पे होते हैं। द फर्स्ट सीज़न इज़ देयर, दैट इज़ द हॉट वेदर सीज़न। सेकेंड वन इज़ द सीज़न ऑफ रेनफॉल मानसून, then the season of retreating monsoon, and the fourth one is the cold weather season. Okay, the next part, that is use your brain power. Group the months into the season for whole year according to the charts given. तो सीजन्स को वहाँ पे ग्रुप में पूरे ईयर भर के ग्रुप में वहाँ पे मतलब जो मंथ्स हैं उसे सीज़न के मंथ्स का ग्रुप बनाना है सीज़न के अकॉर्डिंगली, जो पूरे साल भर का होता है। फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द सीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ समर। तो आपको फाइंड आउट करना है मोर अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द सीज़न। सीज़न और क्लासिफिकेशन के जो अलग अलग वेज हैं उसे आपको वहाँ पे ढूंढना है। तो जिस तरह से समर क्या है, व्हाट इज़ समर, इस तरह से। नाउ कलर्स द बोथ, कंसिडर द लोकेशन, एक्सटेंट एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ बोथ द कंट्रीज, राइट मंथ्स एज पर द सीज़न। तो वहाँ पे सीज़न बताए गए हैं समर एंड विंटर, और यहाँ पे कंट्री दिए गए इंडिया एंड ब्राज़ील। तो यहाँ पे जो भी कुछ मैंने यहाँ पे आपको बताया उसके हिसाब से ये आपको फिलअप कर देना है। इंडिया के अंदर समर के मतलब जो मंथ है वो कब होते हैं, और ब्राज़ील के अंदर समर के मंथ कब हैं। उसके बाद इंडिया के विंटर वाले मंथ और ब्राज़ील के विंटर वाले मंथ आपको वहाँ पे बताने हैं। ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो फ्रॉम फिगर 4.6 to 4.13 एंड राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट देम। ओके, तो यहाँ पे ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फिगर 4.6 जो है ट्रैफिक जाम ड्यू टू रेनफॉल इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के अंदर जो रेनफॉल होती है जिसकी वजह से जो ट्रैफिक हुई है उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है ना। तो वेरी हेवी रेनफॉल वी आर सीइंग हियर, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी बिग प्रॉब्लम is facing by the people of the Brazil, and we are seeing the traffic jam of Brazil, and all the roads are filled with the water, and because of that the vehicles cannot travel smoothly on the road. Such a type of description you can say that. Next, फिगर 4.6 ट्रैफिक जैम ड्यू टू रेनफॉल इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर रेनफॉल की वजह से इस तरह का जो ट्रैफिक जाम है उसका डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। द नेक्स्ट पार्ट इज़ देयर, दैट इज़ ड्राई लैंड इन ड्रॉट अफेक्टेड रीजन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो मतलब ड्राई लैंड है, ड्रॉट अफेक्टेड रीजन, उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बताना है। उसके बाद स्नोफॉल है इंडिया का, नेक्स्ट रेनफॉल ब्राज़ील का, देन डिफॉरेस्टेशन ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का ये डिफॉरेस्टेशन के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट पिक्चर इज़ देयर, दैट इज़ अ वेल सोर्स ऑफ द वाटर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो वाटर का सोर्स है वेल है ना, तो इसके बारे में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बताना है। ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में जो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन है जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बताना है। देन पैडी फार्मिंग इंडिया, इंडिया के अंदर का जो पैडी फार्मिंग है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट पार्ट इज़ डू यू नो टेम्परेचर इन गंगानगर इन राजस्थान सोर्स टू 50 डिग्री सेल्सियस इन जून। तो गंगानगर राजस्थान के अंदर जो गंगानगर है वहाँ पे जून मंथ में टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक हाई हो जाता है। कारगिल टाउन ऑफन एक्सपीरियंसेस टेम्परेचर एज लो एज -48 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। तो विंटर के दिनों में कारगिल टाउन में टेम्परेचर जो है वो -48 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरता है। देन मिज़ोरम, इसे हम मिज़ोरम भी कह सकते हैं,
11,872 millimeter and Cherrapunji 11,777 millimeter in East Khasi Hills district of Meghalaya are the wettest places not only in India but also in the world। तो इंडिया के अंदर एक प्लेस है जैसे कि मिज़ोरम, चेरापूंजी और ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का जो मेघालय वाला पार्ट है, मेघालय का ये ईस्ट खासी हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गीली ज़मीन वहाँ पे या प्लेस होती है। द जैसलमेर इन वेस्टर्न राजस्थान इज़ ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे ड्राइस्ट पार्ट कौन सा है? राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जैसलमेर। इट रिसीव लेस दैन 120 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। तो पूरे साल भर में वहाँ पे 120 मिलीमीटर तक से भी कम रेनफॉल होती है। देन तमिलनाडु रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीज़न। तो रिट्रीटिंग मानसून सीज़न जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो तमिलनाडु के अंदर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट चेरापूंजी एंड मिज़ोरम रिसीव्स मोर दैन 11,000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो चेरापूंजी और मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है 11,000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा। शिलोंग लोकेटेड नियर वेरी नियर टू दिस प्लेस रिसीव्स ओनली 1,000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। और उसके ही पास में शिलोंग ये एक प्लेस है जहाँ पे 1,000 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। व्हाट कुड बी द रीज़न? उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है जो आपको ढूंढकर बताना है। गिव इट अ ट्राई। कंसिडरिंग द लोकेशन एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, लुक फॉर द डिफरेंस इन द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट लाइक टेम्परेचर एंड रेनफॉल एज पर कंडीशन, राइट शॉर्ट नोट। तो इंडिया और जो ब्राज़ील है इनके टेम्परेचर के बारे में हमने वहाँ पे जानकारी ली है, तो जिसके हिसाब से आपको एक शॉर्ट नोट टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में लिखनी है। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो ब्राज़ील इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट नॉर्मली डज नॉट रिसीव स्नोफॉल। तो ब्राज़ील ये ट्रॉपिकल कंट्री है और जनरली वहाँ पे स्नोफॉल होता ही नहीं है। बट इन एक्सेप्शनल कंडीशन साउथर्न पोलर एरिया मासेस रीच साउथर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील, दिस केसेस रेनफॉल हियर। तो ये जो साउथर्न पार्ट है पोलर मासेस वाला साउथ पार्ट जो है ब्राज़ील का, वहाँ पे कभी कभी रेनफॉल होती है। स्नोफॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन 1879। तो 1879, 1957 और 1985 में स्नोफॉल वहाँ पे हुआ था। इस तरह के रिकॉर्ड बताए गए हैं ब्राज़ील के। गिव इट अ ट्राई। इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया आर 3 क्रॉप्स ग्रो इन अ ईयर। तो एक ही साल में कौन से पार्ट में इंडिया के अंदर 3 क्रॉप्स वहाँ पे लिए जाते हैं? हाउ इज़ दिस रिलेटेड टू द रेनफॉल ओवर देयर। और ये वहाँ पे रेनफॉल से रिलेटेड कैसे है जिसके बारे में आपको बताना है। ओके, नाउ आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। देन